Hello students, good afternoon all. We are solving our workbook, that is the mathematics workbook part 2, and we are solving now workbook of our chapter fraction 2. Okay students, so here we are solving the page number 29. I hope so till the page number 28 you already completed in your mathematics workbook. So let us solve now some higher order thinking skill examples, and then we will start our next section, that is the concept 9.2, that is the conversion of fractions. But let us now solve some higher order thinking skill examples. Okay, so here we do have the short answer question and example number 21. Find if 3/5, that is 3/5 of 15, and 9/11 of 11, that is 9/11 of 11, are either equal to each other or one of them is greater than the other. तो ये हमें चेक करना है. तो पहले हमें इनकी क्या करनी होगी, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी. दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट 3/5 of 15 means what? Means 3/5 multiplied by 15, that is 3 multiplied by 15 upon 5. Let us do the division. 15 threes are, yes, 45 and the 5, so divide by 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं, so what we get the answer, yes, 5 ones are 1 and 5 nines are 45, so our answer is the 9. Okay, and if we check out, that is the 9/11, that is the 9/11 of 11, that is equal to आएगा हमारा 9/11 multiplied by 11, that is 9 into 11 upon 11. 11 nines are 99 upon 11, so 11 ones are 1, 11 nines are 99, so our answer is the 9. So we can say that they are equal to each other, because whenever we find out the value of the fraction, अगर जब हम वैल्यू उनकी फाइंड आउट करते तो 3/5 ऑफ 15 की भी वैल्यू आती है 9, और 9/11 ऑफ 11 की भी वैल्यू आती है यहाँ पर क्या, 9. सो हम कह सकते कि दे आर इक्वल टू ईच अदर. सो इट इज equal to each other. Okay students, so now let us solve one long answer question. Example number 22. The distance around a playground is 1000 meter. Rohit ran 3/4 of the distance and Kirti ran half the distance. What is the distance covered by each of them? तो देखो डिस्टेंस कितना है प्लेग्राउंड का कि 1000 मीटर है. रोहित ने 3/4 उसका कवर किया है. किसने कहा? 1000 मीटर का 3/4 कवर किया है. और कीर्ति ने यहाँ पर कवर किया है हाफ ऑफ द डिस्टेंस. तो किसने ज़्यादा किया है और किसने कम किया है, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय रोहित एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कृति, इनको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. लेट अस फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ प्लेग्राउंड हम कह सकते हैं. सो डिस्टेंस ऑफ प्लेग्राउंड दैट इज इक्वल टू आएगा हमारे कितने, 1000 मीटर. रोहित रैन 3/4 हम इस तरह से लिखते हैं, 3/4 ऑफ 1000 मीटर. दैट मीन्स व्हाट, यस, दैट मीन्स होता है हमारा, देखो 3/4 ऑफ 1000, दैट इज आपको पता है मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर. तो ये होगा हमारा कितना, 3000 डिवाइड बाय आपका 4. सो यहाँ पर हमें करनी होगी डिवीजन. ऑलरेडी हमने ये डिवीजन की हुई है, फिर भी हम एक बार कर देंगे डिवीजन. सो लेट अस डू द डिवीजन ऑन द पेज. दैट इज द 4 से हमें डिवाइड करना है 3000 को. ऑलरेडी वी नो दैट व्हाट टू डू. 4 7s are 28, सब्ट्रैक्शन होगा
यहाँ पर 10 होंगे, यहाँ पर 2 आएंगे, 10 माइनस 8 दैट इज़ 2, 2 माइनस 2 इज़ 0, ऊपर से लिए है 0, यहाँ पर 7 ओके 4 5 आर 20, सो 20 इज़ देयर, 0 0 ऊपर से लिए फिर से 0, 4 zeros are 0, so our answer is the 750. So that means Rohit ran 3/4 of 1000 meter, that means 7050 meter. Okay, now here, so Rohit ran, so we can say that Rohit ran or Rohit covered or Rohit ran 750 meter. ओके तो ये बात तो हमने फाइंड आउट कर ली. नाउ कृति ने डिस्टेंस कवर कितना किया है? कृति रैन हाफ डिस्टेंस, सो दैट मीन्स हाफ ऑफ 1000 मीटर. सो ये कितना होता है? यस, ये होता है हमारा 1/2 ऑफ 1000, दैट मीन्स 1000 अपॉन 2. तो ये तो बहुत सिंपल डिवीजन है. 2 1s are 1 and 2 5s are and zeros are like that. Here we can solve. 2 5s are 10, 0 0 ऊपर से लिया 0, 2 zeros are 0, तो 0 हो गया, ऊपर से अगेन 0 लिया, 2 zeros are 0. सो यहाँ पर डिवीजन हो गई कंप्लीट. व्हाट इज आवर आंसर? आवर आंसर इज द 500. सो 500 meter. Okay, so we can say that distance covered by Rohit is 750 meter and Kriti is 500 meter. Okay students, so here we completed the long answer question. Now let us turn the page. So you can see the page number 30. We do have the concept 9.2, that is the conversion of a fraction. So let us solve some example from the recall section, multiple choice questions. So here we do have the addition examples, और ये addition तो I know you can easily solve. जैसे कि हमें एडिशन में क्या करना होता है कि 4 + 1 और डिवाइड बाय आपका 6 होगा, दैट इज़ द क्या होगा आपका 5/6. कौन सा ऑप्शन सही है फिर? यस, ऑप्शन नंबर सी. सो राइट डाउन सी ऑप्शन हियर. यू कैन डू इजीली दैट सब्ट्रैक्शन. 10 - 6 करना है, डिनोमिनेटर के नंबर को हमें एज इट इज रखना है. 10 - 6 इज द 4, 4/11. कौन से ऑप्शन में है? यस, सो ए ऑप्शन में है. सो वी हैव टू राइट द ए ओवर हियर. You can easily solve the solution of that example, so that is for your homework part. क्या आएगा इसका जवाब? फिर भी बता देता हूँ आपको कि 8 - 2 क्या होते हैं? यस, 6/13 आएगा इसका जवाब. सो देखो अभी आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर लिखना है. I know that you can easily solve that example. Let us solve some remembering and understanding section examples. Multiple choice question. Numerator of a proper fraction is. प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कैसा होता है? इज लेस दैन ग्रेटर दैन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर. तो देखो न्यूमरेटर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन का हमेशा लेस दैन होता है उसके डिनोमिनेटर से. सो दैट इज लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर. सो आवर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. बट इन द एग्जाम्पल नंबर 5, इफ द न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर देन द लाइक फ्रैक्शन इज. क्या कह सकते हैं हम उसको? लाइक फ्रैक्शन क्या हो सकता है यहाँ पर? मिक्स फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, या लाइक फ्रैक्शन होगा. सो ये होगा हमारा एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. कौन सा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर. सो हियर वी हैव टू रिटर्न द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द फ्रैक्शन 2 4/9 इज देखो देखने पर ही समझ में आता है इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन. So right option A over here. Now let us solve the fill in the blanks. Example 7. Dash fractions have their numerators greater than their denominators. कौन से फ्रैक्शन में ऐसे होता है? यस,
तो ये फ्रैक्शन यहाँ होते हैं आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से। सो हियर वी हैव टू राइट द इम्प्रॉपर, सो राइट द IMPROPER improper fractions. Okay, now mixed fraction have a whole number and a proper fraction. mixed fraction को कौन सा होता है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम उसको कहते हैं। नाउ ऑन द पेज नंबर 31 we do have to convert an improper fraction to a mixed fraction we have to dash the numerator by denominator। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें कन्वर्ट करना है किसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में, तब हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिवाइड करना होता है। हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। सो वी हैव टू डिवाइड। ओके, सो नाउ let us solve the very short answer questions. Convert 12/3 into a improper fraction। तो यहाँ पर तो आपको बात पता है कि जब भी हमें ऐसे नंबर आते हैं 12 3/5, so whenever we have to convert it, so what we have to do, yes, we have to multiply 12 multiplied by 5 and then we have to add that numbers in it, and again we have to write the denominator. So 12 5s are, you know that 60 and plus 3/5. So what is your answer? Your answer is the 63/5. That is your improper fraction. Okay, so now convert 14/3 to its mixed fraction फॉर्म। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर हमें करना होता है क्या, डिवाइड। सो चलो रफली यहाँ पर कर देते हैं हम डिवाइड। whenever we have to divide, so 14 divided by, अगर 3 होता है तो आपका क्या होता है, 3 1s are 1, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 4s are 12. So what is your answer? Remainder is the 2, 1 minus 1 is the 0. So your remainder is the 2 and the denominator or your quotient is the 4. So हमें क्या करना होता है, quotient को लिखना है यहाँ पर लिखना है रिमाइंडर को, और यहाँ पर लिखना है जिस नंबर से हमने ये किया। तो व्हाट इज आवर आंसर, 4 2/3 और 2/3। सो आवर आंसर इज द 14/3, दैट इज इक्वल टू 4 2/3। तो देखो स्टूडेंट्स को किस तरह से चेक किया जाता है, ऐसे चेक करते हैं हम। 4 3s are 12, 12 plus 2 is the 14, so 14/3। 4 3s are 12 and 12 plus 2 is the 14, 14/3 is our correct answer. So write an example of each of a proper and improper fraction. So ये एग्जाम्पल आपको ही लिखने हैं। तो यहाँ पर बात ये समझने की, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कम लिखो, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, जो इसकी वैल्यू होती है न्यूमरेटर की वो ज़्यादा लिखनी है डिनोमिनेटर में। एक में यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, और दो लिख सकते हैं आप। देखो जैसे कि 3/5 ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। देन 4/9 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, फिर 1/6 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो दैट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये कौन से होंगे आपके प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो हमें देखो 12/3 ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फिर 16/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फिर 53/2 ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दैट आर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप बहुत सारे आपके खुद के एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। नाउ लेट अस सॉल्व द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शंस को इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। कैसे करना है पता है हमें, देखो 7 5/10। सो क्या करना होता है आपको कि 7 × 10 एंड +5 एंड डिवाइड बाय 10।
So your answer is the 70 plus 5 divided by 10. That is the 75 divided by 10. Okay. Similarly, तो ये तो मैंने किया A1 का. I know that you can easily solve the B1 and that is for your homework part. Now let us solve the 14th example. Convert the improper fraction into mixed fraction. यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया है उनको क्या करना है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो डेफिनेटली वी हैव टू डिवाइड द 27. तो रफ में करेंगे हम यहाँ पर डिवीजन. 27 को डिवाइड करना है नंबर 5 से. वी नो दैट 5 5 आर 25. सो 7 में से 5 गए कितने गए 2. 2 minus 2 इज द 0. सो व्हाट इज आवर आंसर? यस, आवर आंसर इज द 5 upon 2. ओके. सो सॉरी, यहाँ पर आएगा जवाब का यस 5 2 upon 5. 5 5 is 25 and plus 2 is the 27. So we have to write the solution for the A1, that is the 27 upon 5, that is equal to आएगा आपका 5 2 upon 5. So that is your answer. For the B1, I know that you can easily find the solution for the B1. You have to just divide the number 31 by 7 and you can find out the solution. Okay, तो पता है हमें कि हमें पहले क्वेश्चन लिखना होता है, then we have to write the remainder and then we have to write divide by, we have to write the denominator. Now let us solve long answer questions. 15 example. List out proper fraction, improper fractions and mixed fractions from the following. तो यहाँ से आपको क्या क्या करने हैं कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना है, सॉर्ट करना है, सेपरेट करना है. चलो फिर A1 में देखते कि कौन कौन से हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको बात पता है कि क्या है कि न्यूमरेटर की वैल्यू कम चाहिए डिनोमिनेटर से. सिंपल सी बात है यहाँ पर. तो ये वाला एक एग्जाम्पल, देन इस एग्जाम्पल में तो नहीं हो सकता, इस एग्जाम्पल में भी नहीं होगा, इस एग्जाम्पल में भी होगा. सो यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल हम कह सकते हैं किसके हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के. दैट इज द 2/7 एंड 6/11. अगर हम बात करें किसकी, मिक्स फ्रैक्शन की, मिक्स फ्रैक्शन की, तो चलो देखते हैं कौन कौन से मिक्स फ्रैक्शन है ए में. देखो पहला ही जो 5 1/3, 5 1/3 कॉमा, देन दूसरा है यहाँ पर 8 1/2, तीसरा है यहाँ पर 13 1/5, 13 1/5. So that are the 3 examples for the mixed fraction. And if you want to write down the improper fraction अगर हमें लिखने हैं यहाँ पर, so कौन कौन से आएंगे आपके, यस 5/3, 9/2 and 17/8. You can write down the improper फ्रैक्शन. कौन कौन से आएंगे, यस 5/3. क्यों आएंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, उसका बिगर है देन द न्यूमरेटर. सॉरी, न्यूमरेटर इज द बिगर देन द डिनोमिनेटर. देन आवर 9/2 and the 17/8. Okay, they are the improper fraction. Above are the mixed fraction and proper fractions are here 2/7 and the 6/11. Similarly students, you must have to solve the second one example, that is for your homework part, and it's so easy, I know that. So you can easily solve that all examples properly in your mathematics workbook. Now let us turn the page and open the page number 32 and we have to solve the example number 16. Convert the following into mixed fractions. तो चलो A1 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं.
150/12। तो इसको कन्वर्ट करना है आपको किस में, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये है हमारा जो कि है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड टू कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन। लेट अस डू द डिवीजन। 150 डिवाइड बाय 12। सो यहाँ पर ऑलरेडी समझ आ जाता है कि 12 1s are 12। देखो क्या रहते फिर यहाँ पर 5 में से 2 गए तो रहते आपके 3, 1 में से 1 गए तो रहते आपके 0, ऊपर से लिए 0 नीचे। अभी भी फिर से होगा हमारा 12 2s are 24। 12 2s are कितना होता है आपका 24 होता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके 10, यहाँ पर आते हैं 2, 10 में से 4 गए तो रहेगा आपके 6, और 2 - 2 इज द 0। सो व्हाट इज आवर आंसर? आवर आंसर इज द 12 6/12। तो 6 हो गया यहाँ पर रिमाइंडर, ये हो गया 12 आपका क्या हो गया कोशंट, और यहाँ पर 12 हो गया जो कि हमारा डिनोमिनेटर। तो इससे आपको समझ में आता है कि अगर इसका क्या लिखना है, हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड करने वाले हैं उसको कौन से नंबर से, यहाँ पर कि 150 हैज टू डिवाइड विद द नंबर 12, 12 1s are 12, so remaining 30, and we write down the 12 2s are 24. What is our answer? Yes, our answer is the 6. Okay, and then our division is complete over here. So what is our answer here? We can write down that 12 5 upon, there is a 5 upon, sorry 6 upon 12, बिकॉज रिमाइंडर हमें यहाँ पर रखते हैं और नीचे लिखते हैं कि डिनोमिनेटर का जो नंबर है वही हमें यहाँ पर लिखना होता है, एंड जो क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली आई नो दैट यू कैन सॉल्व द B1, C1 and the D1 example, but I will give you one hint that before solving that example, make a table of 43 and table of 35, so you can easily solve that example. Okay students, bye bye for now and take care. The next part or next example we will solve in the next video. Okay students, take care.